Hello children, welcome to lecture 4 of Maths chapter 2 Polynomials. Today the topic of our learning is factor theorem, and also we will cover question number 1, 2, 3 of exercise 2.4. I hope you have gone through the previous video lecture 3, because if you have not gone through that lecture, you will not be able to understand this one, because these two lectures are interrelated. So I'll recommend you all to first go through lecture number 3 and then go through the lecture number 4. So let's begin. Today the topic of our learning is factor theorem, and if you have gone through the previous lecture, then you must be aware of polynomial remainder theorem. Okay, so let's see what this factor theorem states. That factor theorem states that if p of x is a polynomial of degree n that is greater than or equal to 1 and a is any real number, then, ठीक है, सिंपल वर्ड्स में बोलती हूँ, पॉलिनोमियल है एक p of x, ठीक है, जिसकी डिग्री 1 है या उससे ज़्यादा है, डिग्री यू नो ना, हाईएस्ट पावर, और a हमारा कोई रियल नंबर है. तो क्या टू पॉसिबल केसेस हैं. The first is x minus a is a factor of p of x if your p of a is 0. Right? क्या मतलब है इसका कि अगर p of a 0 है तो हमारा x minus a p of x का फैक्टर होगा. Conversely, इसका उल्टा कर दो कि अगर x माइनस ए पी ऑफ एक्स का फैक्टर है तो p ऑफ ए 0 होगा. ये हमने रिमाइंडर थियरम में भी पढ़ा है कि अगर हमारा p ऑफ ए 0 आता है तो हमारा x माइनस ए जो है फैक्टर होता है p ऑफ x का. राइट? तो यही दो चीज़ें हम इस फैक्टर थियरम में पढ़ेंगे. नाउ यू विल से कि ये कैसे पॉसिबल है. सो लेट्स गो थ्रू द प्रूफ. नाउ दिस डिवीजन चेक रूल यू ऑल नो, that dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. ये सबको पता है. यहाँ पर हमारा डिविडेंड क्या है, पॉलिनोमियल p of x, डिवाइजर है हमारा x माइनस ए, राइट, और क्वोशंट सपोज कर लो क्वोशंट है हमारा q of x एंड रिमाइंडर होगा हमारा p of a. ठीक है, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा तो आपको पता चलेगा p of a क्यों है. राइट ना, फर्स्ट केस में हमको गिवन है इफ़ योर p of a इज इक्वल टू 0. इसका मतलब ये टर्म हो गई आपकी 0. अगर आपकी ये टर्म 0 हो गई तो सिर्फ यहाँ तक आपका बचा. दैट इज p of x इज इक्वल टू x माइनस a मल्टीप्लाई q of x. हेंस ऑब्वियसली योर x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ p of x. कैसे पॉसिबल है? ओके, मैं आपको दो नंबर से समझाती हूँ. सपोज आपके पास है 15 इज इक्वल टू 3 इंटू 5. इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है 3 भी आपका 15 का फैक्टर है और 5 भी आपका 15 का फैक्टर है, क्योंकि आप when you are multiplying 3 and 5 then you are getting 15. So 15 comes in both the tables. It comes in table of 3 also, it comes in table of 5. Similarly, if your p of a is 0, this means x minus a is also a factor of p of x. q of x is also factor of p of x. Hence, it proves that x minus a is a factor of p of x. Second part कि if your x minus a is a factor of p of x तो आपका रिमाइंडर 0 आएगा. ये हमने रिमाइंडर थियरम में भी किया था कि अगर हमारा जो डिवाइज़र है x माइनस a, अगर वो फैक्टर है आपकी डिविडेंड का गिवन पॉलिनोमियल का, तो आपका रिमाइंडर 0 आएगा. तो यू कैन सी दैट. ओके, so we will use this factor theorem now to do the questions of exercise 2.4. बहुत आपको लग रहा होगा what all I have written, but it's all very simple. I'll explain you only in very simple words. I'm not going through this written part that you can read yourself. Okay, determine which of the following polynomials has x plus 1 a factor. आपको बताना है ये 4 polynomials आपको given है कि इनमें से x plus 1 किस किस का फैक्टर है. राइट? अभी मैंने आपको बताया फैक्टर थियरम में कि कैसे आपको पता चलेगा कि x plus 1 फैक्टर है. कैसे पता चलेगा? when your remainder is 0. अगर आपका p of a 0 होगा तब आपका x minus a
yes, this one, if your p of a is 0 then your x minus a is a factor of p of x. तो वही हम यहाँ पे फैक्टर थ्योरम को यूज़ करेंगे. हम देखेंगे हमारा x माइनस जो हमारा p of a है वो 0 आएगा, then x plus 1 is a factor. अब now you will say what is this a here? See, this x plus 1 we can write as x minus minus 1, राइट. अब ये हमारा x माइनस a की फॉर्म में हो गया. ठीक है, इससे हमें पता चल रहा है कि हमारा a क्या है, -1. तो हम चारों पार्ट्स के लिए p ऑफ -1 निकालेंगे. p ऑफ -1, व्हाट इज़ दिस p ऑफ -1? मतलब जहाँ जहाँ भी आपका वेरिएबल है आप वहाँ पर -1 पुट करेंगे और फिर उस पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालेंगे. अगर आपका वैल्यू 0 आता है इट मीन्स योर x plus 1 इज़ अ फैक्टर, अदरवाइज इट इज़ नॉट अ फैक्टर. ऑल्टरनेटिवली यू कैन फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं. आप इस x plus 1 को इक्वल टू 0 रखिए. इससे आपको क्या मिलेगी, x की वैल्यू +1 विल गो टू दैट साइड -1. ऐसे भी आप वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं कि हमें यहाँ पर क्या वैल्यू पुट करनी है. क्योंकि आपको ये डिवाइज़र दिया था तो आप इसे 0 के इक्वल रखिए और इससे आप x का वैल्यू निकाल लीजिए, वो आप यहाँ पे डाल दीजिए. या तो आप ऐसे कर लीजिए या फिर आप x माइनस a की फॉर्म में लिख के a निकाल लीजिए, वो डाल लीजिए. दोनों ही मेथड्स ठीक हैं. तो आपको क्या करना है, बेसिकली चारों पॉलिनोमियल्स में x की वैल्यू -1 डालनी है और उनका वैल्यू निकालना है. तो फर्स्ट पॉलिनोमियल में मैंने -1 डाला है, -1 क्यूब plus -1 square plus -1 plus 1, and what I am getting 0. Hence your x plus 1 is a factor of this polynomial, x cube plus x square plus x plus 1. Now in the second part, when I found p of -1, that means I put -1 in place of these variable. What I got, -1 raised to the power 4 plus -1 raised to the power 3 plus -1 raised to the power 2 plus -1 plus 1. I got 1 as my answer, which is not equal to 0. Hence in this case x plus 1 is not a factor of this given polynomial, because आपका रिमाइंडर 0 नहीं आया है, so आपका x plus 1 फैक्टर नहीं है. Same in the third case, p of -1, when I found, what I got is 1. -1 raised to the power 4 plus 3 into -1 raised to the power 3 plus 3 into -1 raised to the power 2 plus -1 plus 1. What I got was 1. So it is not equal to 0. Hence x plus 1 is not a factor of this given polynomial. I hope you all are getting me, and now you can do the fourth part yourself, but then also I have done it for you people. Your fourth part is x cube minus x square minus 2 plus root 2x plus root 2. हमें p of -1 निकालना है, तो जहाँ जहाँ वेरिएबल है हमने वहाँ वहाँ -1 रख दिया. -1 क्यूब माइनस -1 स्क्वायर माइनस 2 plus root 2 into -1 plus root 2. What I got was 2 root 2, which is not equal to 0. Hence x plus 1 is not a factor of this given polynomial. So in this way we will do question number 1. Question number 2. Use the factor theorem to determine whether g of x is a factor of p of x in each of the following cases. You are given 3 polynomials. आपको 3 polynomials दिए हैं, उनके आगे उनके g of x यानी उनके डिवाइजर्स दे रखे हैं और आपको बताना है कि क्या ये इसका फैक्टर है, ये इसका और ये इसका क्या फैक्टर है. चिल्ड्रन कैसे करेंगे, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया. हम x का वैल्यू निकालेंगे, उसको इसमें रखेंगे. अगर हमारा पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना आया, 0, तो फैक्टर है. अगर नॉट 0 आया दैट मीन्स फैक्टर नहीं है. ओके, सो हमारे को क्या दिया, फर्स्ट केस में डिवाइज़र है हमारा x plus 1. सो 2 तरीके मैंने आपको बताए, या तो आप इसे x माइनस a की फॉर्म में लिख लो. x माइनस a कैसे लिखेंगे हम इसे, x माइनस -1, तो a हो गया -1. या दूसरा तरीका है आप इस पूरे डिवाइज़र को ही 0 के इक्वल इक्वेट कर दो, तो यू विल गेट x इक्वल टू -1. अब हमें p ऑफ -1 निकालना है, मतलब जहाँ जहाँ वेरिएबल है वहाँ वहाँ हम -1 पुट कर देंगे. सो p ऑफ -1 इज़ 2 इंटू -1 क्यूब प्लस -1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू -1 -1. वॉट आई एम गेटिंग 0. इसका मतलब ये x प्लस 1 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 का फैक्टर है. इट इज़ अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x. ओके चिल्ड्रन, अब सेकेंड पार्ट कैसे करेंगे, आई एम नॉट गोइंग टू शो यू द आंसर,
वेरी सिंपल, x प्लस 2 को 0 रखो, x का वैल्यू आ गया -2। अब जहाँ जहाँ वेरिएबल है वहाँ वहाँ आपको -2 रखना है, इसका वैल्यू निकालो, अगर वो 0 आया तो फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है। सेम हेयर, x -3 को 0 रखो, x का वैल्यू आ गया +3। अब यहाँ x की जगह +3 डालिए, अगर आपका पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आया तो फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है। तो मैंने आपके लिए सेकेंड पार्ट कर दिया है। एज आई टोल्ड यू, a आपका -2 है, तो आपने इसमें -2 पुट किया, -2 क्यूब प्लस 3 इंटू -2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 प्लस 1, व्हाट आई गॉट इज -1, यानी 0 नहीं आया, सो इट इज़ नॉट अ फैक्टर। Third part I have not done, that you will do yourself, because in maths if you are doing the questions yourself it improves your confidence and motivation, and it's very important for the self evaluation. And what do you mean by self evaluation? हमें किसी और के लिए नहीं करना है, we have to do these questions for ourselves, और हमारे को self motivation की बहुत important नीड रहती है। सो इसीलिए सेल्फ इवेलुएशन करते रहना कि हमें आता है या नहीं आता है। फॉर दैट एटलीस्ट वन पार्ट ऑफ एवरी क्वेश्चन यू शुड डू योर सेल्फ। नाउ थर्ड क्वेश्चन, find the value of k if x minus 1 is a factor of p of x in each of the following cases। अब आपको ऑलरेडी गिवन है कि ये इसका फैक्टर है, मतलब 4p of x दिए गए हैं, इन सब का फैक्टर x माइनस 1 है। तो आपको इनमें जो k की वैल्यू दी गई है पॉलिनोमियल्स में, वो आपको फाइंड आउट करनी है। तो ये तो बहुत सिंपल है, हमें पता है कि हमारा ये x माइनस 1 इसका फैक्टर है, तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लो। x माइनस 1 इक्वल टू 0, दैट इज x इक्वल टू 1, निकल गया। अब इस 1 को हमें यहाँ पुट करना है, चारों केसेस में हम 1 पुट करेंगे, x इक्वल टू 1। तो जब हम इसको 1 पुट करेंगे तो दिस शुड कम इक्वल टू 0, ये सब 0 की इक्वल होना चाहिए, क्योंकि इट इज़ ऑलरेडी अ फैक्टर, हमें बताया है कि ये फैक्टर है, तो ये सब 0 होना चाहिए। तो आपकी सब सारे पार्ट्स में आपकी एक लीनियर इक्वेशन बन गई, उस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके आप k का वैल्यू निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने फर्स्ट पार्ट x स्क्वायर प्लस x प्लस k में p ऑफ 1 निकाला, यानी 1 की वैल्यू पुट की, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस k दैट इज इक्वल टू 0। क्यों 0 के इक्वल है? बिकॉज इट्स ऑलरेडी गिवन इट्स फैक्टर। नाउ 1 प्लस 1 इज 2 प्लस k इक्वल टू 0 एंड k इज इक्वल टू -2। बस यही करना है इसमें। नेक्स्ट पार्ट, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2, हम p ऑफ 1 निकालेंगे, दैट इज इक्वल टू 0। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हमने 1 पुट कर दिया और इक्वेशन कर दी इक्वल 0 के, क्योंकि ऑलरेडी फैक्टर है। सो 2 प्लस k प्लस √2 इज इक्वल टू 0, सो k इज इक्वल टू -2 माइनस √2 माइनस कॉमन निकाल लिया, सो दिस इज योर आंसर। थर्ड पार्ट, kx स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1, हमें पता है p ऑफ 1 0 है, बिकॉज इट्स ऑलरेडी अ फैक्टर, फैक्टर है, हमें ये गिवन है, इट्स गिवन। सो हमने x की जगह 1 रखा, k इंटू 1 स्क्वायर माइनस √2 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू 0, k माइनस √2 इंटू 1 इज √2 प्लस 1 इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू माइनस √2 उधर चला गया, प्लस √2 प्लस 1 उधर चला गया, -1। सो दिस इज योर आंसर। एंड इन फोर्थ पार्ट, kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस k, p ऑफ 1 0 है, यह हमें गिवन है बिकॉज इट्स अ फैक्टर। सो x की जगह हमने 1 रखा, k इंटू 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस k इक्वल टू 0। तो ये हो गया k, ये हो गया -3, ये हो गया प्लस k प्लस k 2k माइनस 3 इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू 2k इज इक्वल टू प्लस 3 एंड k इज इक्वल टू 3/2। So children, this finishes your exercise 2.4 question number 1, 2 and 3. Next question number 4 and 5 are left, which deal with factorization. You have already done in class 8, but still something new is there, so I will take those questions 4 and 5 separately in my next video lecture. Till then, thank you. Stay home, stay safe.